Hello, dear students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your home. Okay? Why you have to stay at home nowadays? Because this coronavirus is spreading very quickly. So, which is our safety place? Home is our safe place. So, we have to stay home and stay safe. Okay? I am Vijayashree Shastri. Welcome you on Social Studies class of 3rd standard, video class of 3rd standard. As you know, we start our studies with prayer, thought, and today I am going to introduce you a activity. Okay, I hope you all will like that activity. Today's श्लोका ऑफ डे ऑन योर palm. आपके दोनों हथेलियों को देखने से आपको क्या मिलता है? Why you have to see that हाथ. आप सुबह उठते ही when you wake up, keep your two palms side by side together and say this prayer and look at the specific part of the adjoined palms. दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने रखोगे और उसके बाद आप ये स्तोत्र या श्लोक बोलोगे. कराग्रे वसते लक्ष्मी मीन्स ये आप कब बोलोगे? लुकिंग एट द टॉप एज ऑफ द पाम्स. आपके हाथों के टॉप एज मीन्स सबसे ऊंचाई की जो प्लेस होती है वहाँ पे देखते. कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती. लुकिंग एट द मिडिल ऑफ एरिया द पाम्स. बिल्कुल बीच के हाथ के हथेली में देखना है. कर मध्ये स्थिते गौरी. लुकिंग एट द बॉटम ऑफ द palm क्लोज टू wrist. प्रभाते कर दर्शनम. क्लोजिंग टू palms टुगेदर. दोनों ऐसे क्लोज करते हुए देखना है. ओके, इस स्तोत्र को मैं साथ में बोलूँगी. कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम. नहीं तो कर मध्ये तु स्थिते गौरी. प्रभाते करे दर्शनम. प्रभाते करे दर्शनम. What it means? At the top of edge of our palm is where the goddesses of wealth Lakshmi can be found. हम हाथ के सबसे ऊपर वाले भाग में देखने से हमें क्या दिखते हैं? लक्ष्मी माता वहाँ पे स्थित होती है. एट द मिडिल ऑफ इज द गॉडेसेस ऑफ नॉलेज सरस्वती. हाथ के बीच में विद्या के जो देवी है सरस्वती रहती है. एट द बॉटम ऑफ palm where गौरी द यूनिवर्सल गॉडेसेस ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट. हमारा हाथ के लास्ट वाले रिस्ट के ऊपर कौन से देवी रहती है? गौरी, पावर और स्ट्रेंथ वाला देवी रहती है. लेट अस स्टार्ट द डे विथ अ फुल व्यू ऑफ आवर ओन हैंड्स. इट कैन बी interpreted that we have everything God can give us in our own hands. हमें सुबह उठ के कोई कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है. सभी हमारे हाथ के अंदर ही लिखे हैं, हमारे पाम के अंदर भी रहते हैं. लक्ष्मी, सरस्वती एंड माँ गौरी हमारे हाथ में ही रहते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर नाउ टर्न इज थॉट. Thought of the day is the roots of education are bitter but the fruit is very sweet. Okay, dear children, it is very simple and very effective thought. The roots of education are bitter. Bitter means कड़वा. इसके जो रूट है मीन्स ऑफ एजुकेशन लेने के टाइम आपको बहुत सारा एफर्ट और हार्ड वर्क करना पड़ता है. एक बार आपके पास डिग्री हासिल होने के बाद द फ्रूट इज़ स्वीट. आप हायर IAS, IPS, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर ऐसे आप लोग बनोगे तो आपका जो रूट है एजुकेशन उसका फ्रूट ये जो होता है ये बहुत ही
स्वीट होता है. द रूट्स ऑफ एजुकेशंस आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट. इसका जो फल होता है वो बहुत ही स्वीट होता है. ओके. Now students, we will move to the, I am going to introduce one activity. I hope you all will do it, and if possible send it complete in my WhatsApp, my personal WhatsApp group. Otherwise keep it with you, and whenever I am going to take my online class, please remember me. That one I am going to check. Okay, now we are moving to the today's activity. सी माय डियर चिल्ड्रन, आपको ये एक्टिविटी दिख रही है. एक्टिविटी नंबर 1, वर्ड गेम. वर्ड गेम, आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्ड. यू हैव टू मेक word from every letter. Today's word is universe. You have to start from U. U for unity, N for noise, I for important, V for vast, E for energy, R for rotate, S for solar, E for endless. Like this you have to make a word from given word. Okay dear children, know it how to do this activity. I gave you a word universe. You have to write from that all words using new words. U for unity. You have to write umbrella, utility, whatever you want to write. From U you have to write. N for sorry dear. I for important, V for vast, E for energy, R for rotate, S for solar, E for endless. Everything whatever you want to write, you want to write there. And today's word is expansion. EXPANSION, expansion. Okay, you have to use EXPANSION. From these all alphabet you have to make a new word. This is your today's game. You have to do it, this activity, in your 6 number notebook. Okay. In our last revision video class, we read the chapter number 1, page number 5 and 6. Today I am going to explain and revise you for MEA test, page number 6. From bit part from the sun and the solar system. The sun is the star nearest to our earth. It is a round, huge ball of fire made up of hot burning gases. It is center of the solar system. It gives heat, light and energy. Okay, sun. All of you know, yesterday I explained you about our universe and we started universe and earth chapter. There I explained you about universe and space of the earth, galaxy means Milky Way, celestial bodies, and stars, and solar system and constellation. वहाँ पे आपको मैंने वहाँ पे ग्रेट बियर और ध्रुव नक्षत्र और पोलर स्टार के मैं बताई थी. आज मैं सन इज आल्सो स्टार. सन इज आल्सो डैश बोले तो सन इज आल्सो स्टार. ओके. हॉट मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में कौन है? सन है. सन के अंदर क्या क्या है? सन के अंदर बर्निंग गैसेस एंड मेड अप ऑफ हॉट फायर बॉल. उसके अंदर जलता हुआ अग्नि और हॉट गैसेस है. उसमें क्या क्या है? जैसे हमारे अर्थ में वाटर लैंड जैसे है, वैसे ही सूर्य जो स्टार है उसमें क्या है? जलता हुआ अग्नि और बर्निंग गैसेस है. सो sun is also star. Sun is also star. Now
The solar system. Okay. The solar system or the sun's family include the suns. Okay, ये जो solar system है ये किसका family है? sun का family है. Okay, it gives us heat, light and energy. One can use the solar energy wisely for different purposes such as cooking, lighting, heating water, moving machines and etc. The solar system. Okay, हमें सन से क्या क्या यूजेस मिलते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग, वाटर को भी हम हीट कर सकते हैं हम सन के. इट गिव्स, सन हमें क्या देता है? इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. सोलर एनर्जी आप जानते हो ना, उससे हमें ये सब मिलता है. द सोलर सिस्टम. इन द स्पेस द सन एंड द प्लैनेट देयर सैटेलाइट्स, द asteroid, pieces of rocks and dust all together from the solar system with the sun being their center. All the planets with their satellite revolve around the sun at different distance and speeds in fixed elliptical path called a orbit. They also rotate by themselves. Okay, here solar system means sun का एक family है, वहाँ पे planets, satellites आर देयर. वो किसे? स्मॉल पीस स्टार से, डस्ट से बने हुए हैं. वो क्या करते रहते हैं? मूव, रिवॉल्व अराउंड द सन. वो सन के गोल गोल आकार में घूमते रहते हैं. ओके, हियर. ओके, व्हाट आर दे? देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द. वो कौन से पथ में? ऑर्बिट. उनके ऑर्बिट में वो चलते रहते, एक दूसरे को टकराते नहीं हैं, अपना वे में ही हाँ वो चलते रहते. देर आर 8 प्लैनेट्स दैट गो राउंड द सन. दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स. द सोलर सिस्टम और द सन्स फैमिली. ये जो सोलर सिस्टम है, 8 प्लैनेट्स जो है वो सन्स का फैमिली है. देयर सैटेलाइट्स और मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज अ कम्स एटसेट्रा. वो जो डस्ट वाला पार्ट जो है हमने आपको बताया था, अराउंड पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, वो भी अराउंड घूमते रहते. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन इज ऑल्सो स्टार. इट इज़ अ गिंट बॉल ऑफ वेरी हॉट गैस. बहुत बड़ा हॉट गैस है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल हेवनली बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम. जो ये सभी जो ग्रह है, ये सभी जो प्लैनेट्स है, उसका हीट एंड ये लाइट देने वाला कौन है? सन. द प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स वॉन्डर्ड. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन on fixed oval path called orbits. ओवल पाथ, गोल भी नहीं है, ओवल शेप में जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ये सभी घूमते रहते. दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट स्पीड. दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन बट इन अ डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंसेस. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैसेस. ये जो सभी ग्रह हैं ये रॉक, मेटल्स एंड गैसेस से बने हुए हैं. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. ये सभी जो है इनके पास लाइट नहीं है. वो किससे रिफ्लेक्ट होते हैं? सन से. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन. दे शाइन बिकॉज रिफ्लेक्ट, उसका जो रिफ्लेक्शन होती है उससे ही शाइन होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट मोर देम. ये जो 8 प्लैनेट्स है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ. In next chapter, in next class, you will learn it in very lengthy. Mercury. It is the nearest to the sun. It is the smallest planet in the solar system. Venus. It is the brightest planet. It is also called the morning star. Earth. Earth is the third planet from the sun. We live on it. It is the only planet in the solar system which has air, water and life. All of you know which planet is lively planet, blue planet, watery planet? That is our earth. यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है? जीवन होता है. मार्स. इट इज़ अ स्मॉल प्लैनेट.
Jupiter, it is the largest planet in the solar system. Saturn, it is the second largest planet in the solar system. It has rings around it. Uranus, it is the third largest planet in the solar system. Neptune, it is the eighth planet from the sun. It is about our sun. The earth is the third nearest planet from the sun, which rotates on its axis in west to east direction once in every 24 hours. This movement of the earth is known as a rotation of the earth. Besides rotation, our earth goes around the sun in 365 1/4 day, means 1 year. This movement of the earth is called the revolution. So dear children, here हमें अर्थ के बारे में बताया है. अर्थ जो अपने जो एक्सिस में घूमता है उसको हम रोटेशन कहते हैं. जो सन के बराबर में गोल गोल घूमता है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन का कॉजेस डे एंड नाइट होता है और रेवोल्यूशन का कॉजेस सीजन्स होते हैं. रोटेशन का टाइमिंग होता है 24 आवर्स और रेवोल्यूशन का टाइम होता है 365 एंड 1/4 डेज. सन को गोल चक्कर लगाने में हमारे पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं. किस और वे पे चलते हैं? ऑर्बिट पे. और अपना भूमि अपने आप घूमती है, उस वे को हम क्या कहते हैं? एक्सिस. ओके, आई होप यू ऑल विल know it very well. Now the मून जो है वो हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. वो जो अर्थ में वो अपने इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 28 डेज. 28 डेज हमारे अर्थ के चक्कर काटता रहता है. उस चक्कर के 15 डेज को हम अमावस्या कहते हैं. 15 डेज आफ्टर को हम पूनम कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं. Sometimes we do not see the moon in all at the sky. That is called the new moon और अमावस्या. अमावस्या के टाइम हम मून को हम नहीं देख सकते हैं. The moon appears changes its shapes day by day. It is called as a phases of moon. After अमावस्या के बाद में 2 दिन के बाद चंद्र का आकार चेंज होने लगता है. वो जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिसेंट मून कहते हैं. क्रिसेंट मून ऑफ शेप ऑफ कर्व्ड मून. शेप ऑफ द कर्व्ड मून. Within an interval means 15 days, the visibility of moon gradually increases. We see the complete round bright full moon, which is also called Purnima. Since then visibility of moon start decreasing gradually. अमावस्या के बाद इंक्रीज होते हुए मून जो है बड़ा दिखने लगता है. सबसे बड़ा कब दिखता है? फुल मून. मीन्स पूर्णिमा के दिन हमें चंद्र जो है वो बहुत बड़े दिखते हैं और अमावस्या के बाद बड़े होते हुए जाते हैं. और फिर से पूनम के बाद चंद्र जो है वो छोटे छोटे होते हुए आते हैं. मून अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट. द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ के हैं. इट इज सच ए स्मॉलर दैन द अर्थ, अबाउट 1/4 साइज ऑफ द अर्थ. हमारा जो अर्थ है उससे बहुत ही छोटा है. 1/4 हमारा अर्थ का जो साइज है इससे 1 भाग भी है. वो 1/4 भाग मून है. It has no air, water, light and life. Its surface is covered with a large holes called craters. आपको जो पता है मून के ऊपर हमारे लाइट और ऐसे नहीं है. मून जो ब्राइट होते हैं वो सूरज का, सन का रिफ्लेक्शन की वजह से मून रिफ्लेक्ट होता है. ओके. और बाद में हमारा अमावस्या और पूनम जब चंद्र जो है चंद्र ग्रह हमारे पृथ्वी को चक्कर काटते हुए हमारे में 28 डेज के अंदर ये दोनों फुल मून एंड अमावस्या
होते हैं। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मीन्स ये हमें हेल्प होने के लिए साइंटिस्ट जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं। वो हमारे आर्यभट्ट जो है इंडिया के, वो पहला सैटेलाइट हमारा था। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस पे जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। सबसे पहले मून के अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडमिन हिलरी, वहाँ पे एडविन एल्ड्रिन वहाँ पे मून पे गए थे। मून पे जाके उधर से सम फोटोग्राफ्स लेके वो आए थे। वैसे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है वो कौन कौन है? वी आर प्राउड ऑफ आवर एस्ट्रोनॉट्स द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। बाय बैड लकली हम कल्पना चावला को लॉस्ट कर चुके हैं। ओके, नाउ कम टू द क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू मीन्स अब हमने इतना सारा पढ़े हैं वो सब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज and endless expansion having group of millions of galaxies. Sun is also star. Okay, sun is a star. The earth is planet of the solar system which revolves around the sun in fixed orbit in 365 days and rotates on its axis in 24 hours from west to east. The moon is the only natural satellite of the earth. The planets shine and reflect the sun's light. Our earth is the third nearest planet from the sun. Due to the presence of water, air, soil and suitable temperature, the earth has life on it. बेटा ये सभी जो है हमारे क्विक रिव्यू है। हमने जितना भी हमने पढ़े थे वो सब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। गैलेक्सीज मीन्स क्या है और भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। गैलेक्सीज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द मून इज ओनली नेचुरल satellite. Okay, Milky Way, the galaxy that contains our solar system. Satellite, a small object that move around the planet. Okay, universe, stars, planet and everything else in a space. This is all called our planet. Okay, my dear children, I hope you all will learn it very properly for your MEA exam. Today also I am going to give you some exercises. You have to solve that exercises in your 6 number notebook. I hope you all will do it very best in your best way. Okay, take care, stay safe, stay home. Bye bye.